احادیث نبویہ کے اندر ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے۔ آج کیونکہ جن کی نسبت سے یہ محفل ذکر حسین بپا ہے، احادیث نبویہ کے اندر آتا ہے کہ حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں عکس مصطفیٰ تھے۔ یعنی احادیث نبویہ کے اندر آتا ہے کہ مبارک سر سے لے کر سینہ تک وہ شبیہ رسول عکس مصطفیٰ تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اگر چہرہ جو تھا وہ حضرت امام حسن کا تھا تو ہونٹ جو تھے وہ میرے کریم رسول کے تھے۔ اگر چہرہ حسن مجتبی کا تھا تو چہرے پہ آنکھیں میرے کریم رسول کی تھی، اور پھر سینہ اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک وہ سیم ایز اٹ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عکس مصطفیٰ تھے۔ اور جب کریم رسول کا وصال ہوتا ہے اور اصحاب رسول کریم رسول کی جدائی میں تڑپتے تھے اور مچلتے تھے، کیونکہ وہ چہرہ مصطفیٰ ان اصحاب رسول کے سامنے نہیں ہوتا تھا، تو وہ در فاطمہ پہ حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے، سیدات طیبات طاہرات حسنین کریمین کو باہر بھیجیے۔ وہ جب باہر تشریف لاتے، جمیع صحاب رسول ان دونوں کو سامنے اکٹھا کھڑا کر کے وہ پھر جب تصور میں آنکھیں بند کر کے دیکھتے تھے تو انہیں دونوں کو کھڑا دیکھ کر جب وہ تصور میں جاتے تھے مسجد نبوی منبر رسول پر تو وہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے، کیونکہ دونوں عکس مصطفیٰ تھے۔ سر سے لے کر سینے تک حسن مجتبی میرے کریم رسول کے ہم چہرہ تھے، اور سینہ سے لے کر قدمین شریفین تک میرے کریم رسول کے ہم شکل وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب حضرات محترم، کیونکہ یہ محفل ذکر حسین ہے، کیا ہے؟ بولیے ذرا، محبت سے بولیے، محبت سے بولو گے تو پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ محفل کیا ہے؟ یہ بولیے، محفل کیا ہے؟ محفل ذکر حسین ہے۔ اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، کنز العمال، یہ حدیث پاک کی معتبر ترین کتاب ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ مرفوعاً روایت فرماتے ہیں کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نور سے ارشاد فرمایا، اگر مزہ نہ آئے تو پھر بے شک سبحان اللہ دل سے نہ کہنا۔ اگر یہ حدیث پاک سن کر آپ کی زبانوں سے، آپ کے دل سے سبحان اللہ جاری ہو جائے تو یوں سمجھیے یہ محفل یہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ میرے کریم رسول نے فرمایا 4 شخص ایسے ہیں، کتنے؟ بولیے کتنے؟ حق 4 یار کی نسبت سے حوالے سے فرمایا 4 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے روز جن کے لیے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، شفاعت کروں گا معاشر کی سخت ترین گرمی میں۔ فرمایا لوگ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے کہ کریم رسول ہماری شفاعت فرمائیں، لیکن کریم رسول فرماتے ہیں 4 شخص ایسے ہوں گے جنہیں میں تلاش کر کے کریم رب کی بارگاہ میں ان کی سفارش کروں گا، ان کی سفارش کروں گا۔ فرمایا پہلا شخص وہ ہے کہ جو میری اولاد کی عزت و تکریم کرنے والا ہے، یعنی سیدزادوں کی تکریم کرنے والا،
मेरे करीम रसूल फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन उसकी भी शफात करूँगा। और दूसरा फरमाते हैं कि जो उनकी हाजात को पूरा करता है, अगर कोई नस्ली असली सैयदादा किसी की दहलीज पे दस्तक देता है और कहते हैं मैं सिर्फ आप ही के पास आया हूँ, किसी को पता भी न चले, इज्जत नफ्स भी मजरू न हो, मेहरबानी कीजिए ये मेरी हाजत है पूरी कर दीजिए। करीम रसूल ने फरमाया मेरे उस शहजादे की, मेरी निस्बत रखने वाले की, मेरे उस खून की जो हाजत पूरी कर देता है, फरमाया मैं कल क़यामत के दिन उसकी शफात करूँगा, उसकी शफात करूँगा। और तीसरा फरमाया कि उनके मामलात के लिए तगोदो करने वाला, किसी को मुलाजमत की ज़रूरत है। और मुझे बात याद आ गई कि जनाब किबला ये जो इदारा है, इसके बानी जिन्होंने अपनी निगरानी के अंदर, अपनी सरपरस्ती के अंदर दिन रात गुलशन रावी से सफ़र करके यहाँ पे वो कभी मोटरसाइकिल पे, कभी किसी सवारी पे, कभी पैदल, दिन रात यहाँ पे आके उन्होंने इतनी देवकामत बिल्डिंग अपनी निगरानी में कायम करवाई है। और मुझे मालूम हुआ है, मैं ज़ियारत तो नहीं कर सका, और याद रखिए मैं खुशामद का भी आदी नहीं हूँ कि वैसे मैं कह रहा हूँ कि शायद वो पीर साहब के ससुर है, नहीं, मैंने को 8-10 बंदू से मिला हूँ जो उनके जानने वाले थे, जो उनसे खूनी रिश्ता था या वैसे जान पहचान, मैंने हर बंदे से उनकी तारीफ़ सुनी है। और वो बंदे, वो शख्सियत ऐसी बाबा जी चौधरी मोहम्मद अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह कि जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को बसिलसिला रोज़गार उनको रोज़गार पे लगाया, उनको मुलाजमत दी। हो सकता है और यकीनन होगा कि कोई उनमें सैयदज़ादा भी होगा, कोई सैयदज़ादा ज़रूर होगा कि उन्होंने मुलाजमत लगाई होगी। करीम रसूल ने फरमाया जिस शख्स ने भी मेरे खूनी रिश्ते, नस्बी रिश्ते, मेरी औलाद में से किसी को मुलाजमत पे लगाया, किसी का कर्जा दिया, किसी का और मसला हल कराया, फरमाया उस तीसरे शख्स की भी कल क़यामत के दिन मैं खुद रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में सिफारिश करूँगा। और चौथे नंबर पे मेरे करीम ने फरमाया, याद रखो, करीम रसूल ने फरमाया चौथा शख्स वो होगा जो मेरी आल से, दिल और जान से मोहब्बत करने वाला होगा। और हम सारे हो सकता है कि मैंने किसी की मुलाजमत ना लगवाई हो, किसी की हाजत ना पूरी की हो, लेकिन कम से कम 2 शर्तें तो है ना, 2 लोगों में तो हम शामिल हैं ना, कि एक तो सादात की इज्जत और तकरीम करते हैं, और तकरीम ही नहीं करते बल्कि आप, मेरा विजदान कहता है, हुस्न ज़न रखता हूँ कि आप जितने बैठे हैं सारे मेरे करीम रसूल की आल से दिलो जान से मोहब्बत करने वाले हैं। ऐसे है ना कि नहीं? हाथ खड़े करके जरा कहें कि दिलो जान से मोहब्बत करने वाले हैं ना, दिलो जान से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह के फजल व करम से बस ये गवाही मेरे करीम हुसैन ने भी देख ली है, मेरे करीम हुसैन देख रहे हैं। नाना को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, तो फिर वो हुसैन जिसने अपने नाना की ज़ुबानें चूसी हैं, जो अपने नाना के सीने पे खेलता रहा है, वो नाना जिसने अपने नवासे के लिए सजदों को तवालत बख्शी है, तो मेरे करीम रब ने फिर उन्हें मकाम कितना अता फरमाया होगा, कितना मकाम अता फरमाया होगा। हज़रात मोहतरम, ये हमारा जो प्रोग्राम होता है ये 2 घंटे पर मुश्तमिल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर महीने किसी न किसी एक ख़ास शख्सियत को भी हम दावत देते हैं कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और इन मुजाहिदों से, इन मुजाहिदीन से, आशिकान मुस्तफ़ा से वो मुखातिब होते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये इदारा मिनहाजुर रसूल मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने अर्ज़ किया कि ये किबला चौधरी मोहम्मद अहमद रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्ग आदमी थे, नेक आदमी थे। और याद रखिए, एक बात याद कर लीजिए, मौला अली शेर खुदा का फरमान याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, अगर तुम किसी के साथ नेकी करो, तुम किसी के साथ, तो खुफिया कर लो, ज़्यादा बेहतर है।
ज़्यादा अजर है। लेकिन फरमाया अगर तुम्हारे से कोई नेकी करे तो फिर उसका चर्चा किया करो। क्या किया करो? तुम किसी के साथ नेकी करो तो चे जाए, चर्चा ना करो तो ज़्यादा अफजल है, लेकिन हुस्न नीयत के साथ करो तो ठीक बात है। लेकिन फरमाया आला और अफजल ये बात है कि तुमसे कोई नेकी करे तो सभी को बताओ कि बाबा जी ने, फलां पीर साहब ने, फलां हाफिज साहब ने, फलां कारी साहब ने मेरे साथ ये नेकी की है, ये नेकी की है। ये इदारा मिनहाजुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह ये दीनी हवाले से, ये खिदमत इंसान के हवाले से ये हमेशा पेश रहा है। किबला पीर साहब मोहम्मद अकरम नक्शबंदी कादरी कलंदरी दामत फयूज़ुहुम जो इस इदारा के सरपरस्त आला भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और गाहे गाहे लम्हा लम्हा लहजा लहजा अल्लाह के फजल व करम से ये मैं तहदीस नेमत के तौर पे बता रहा हूँ। इसमें कोई फ़ख्र नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए और आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि ये जो इदारा है मिनहाजुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तक यानी हमने फरवरी से आँखों के हवाले से आई कैंप का पहला यहाँ पे हमने एहतमाम किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिनके ऑपरेशन हुए, जिनका इलाज हुआ, जिनको हमने एनके दी, जिनको ड्रॉप्स दिए, जिनके आँखों के बहुत सारे मामलात थे, अल्लाह के फजल व करम से अब तक की डेट मैंने हॉस्पिटल से ली है कि जनाब आपके इदारा के रेफरेंस से, पीर साहब के रेफरेंस से, आपके हवाला से अब तक 35 बंदे, कितने बोलिए कितने, 35 बंदे अपनी आँखों का ऑपरेशन फ्री करवा चुके हैं। और तकरीबन 350 बंदे अब तक वहाँ हॉस्पिटल, यहाँ पे भी 200 बंदा पहला हमने कैंप लगाया, वो आए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने उनका इलाज किया अल्लाह के फजल व करम से। तो 350 से ज़ायद बंदे हॉस्पिटल में जाके हमारे रेफरेंसेस से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उनका फ्री ट्रीटमेंट हुआ है। हर हवाले से किसी को ऐनक की ज़रूरत है, किसी को ड्रॉप की ज़रूरत है, किसी को ऑपरेट हुआ, किसी का सफ़ेद मोतिया, किसी के आँख के हवाले से। मैं आज भी कहना चाहता हूँ ज़िक्र हुसैन की बरकत की वजह से अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी का कोई मसला हो, आँख के हवाले से बड़े से बड़ा मसला हो, अल्लाह ना करे लेकिन हो जाता है, तो आप हमारे पास आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा मिनहाजुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लेटफॉर्म से अगर वो बाहर से मुसाफिर भी आएगा तो जितने दिन यहाँ पे रहेगा उसकी रिहाइश का बंदोबस्त भी होगा, उसके खाने का बंदोबस्त भी होगा, और आँख का जितना उसका मसला होगा वो फ्री ऑफ कास्ट होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछली जो ईद गुजरी है कुर्बानी वाली ईद, ये बहुत सारे दोस्त यहाँ गवाह भी हैं, देखा भी होगा, हमने अमल करके दिखाया है। किबला पीर साहब की सरपरस्ती में, इनकी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह 500 ख़ानदानों में, कह दो सुभान अल्लाह, कितने ख़ानदानों में? 500। खुदा की कसम मैं आपको क्या बताऊं, आज भी मैं गया हूँ, ये बच्चे भी मेरे साथ थे मदरसा के, ये सामने झुग्गियों में रहने वाले लोग कितने बेबस हैं, मजबूर हैं और कितने लाचार हैं ये लोग। आप यकीन जानिए, हम जब दूसरे दिन हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया ना गोश्त, ये किबला मुनीब साहब भी साथ थे, किबला उमर भाई भी साथ थे और पीर साहब भी, और पूरी हमारी टीम थी। एक हम एक झोंपड़ी में यहाँ पे गए, खातून थी 80 साल से बब, उसने कहा आज दूसरा दिन है, हमने गोश्त का मुंह तक नहीं देखा। और हमें पता चला हमारे बच्चे गए थे इन कोठियों में गोश्त मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें एक पाव गोश्त नहीं दिया, लेकिन हमें ओजड़ियाँ और अलाशें थी वो हमें कहा ये उठा के ले जाओ। लेकिन आज पीर साहब आपका अल्लाह भला करे कि आज हमने ईद कुर्बान का दूसरा दिन है, आज हमने आपकी विसातत से आज हमने गोश्त का मुंह देखा है। कितने जालिम हैं वो कोठियों वाले, वो बंगलाज और महल्लात में रहने वाले जो इन गरीबों का ख्याल नहीं रखते, उन्हें अलाइशें और गंदमंद उठा के दे देते हैं, लेकिन कुर्बानी का गोश्त उन्हें नहीं देते।
ज़्यादा हकदार तो ये है कि जिन तक गोश्त पहुँचाया जाए। और ये हमारे इदारे को फैज़ और फैज़ान और ये फजीलत हासिल है कि हमने बाइज़्ज़त तरीके से पैकिंग करके डब्बों के अंदर और बेहतरीन शॉपर में अच्छा खासा गोश्त हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर एक की झोपड़ी में जाके बाइज़्ज़त तरीके से हमने पहुंचाया है। ये हमारे इदारे की कारकर्दगी है। और आज भी मैं गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि 10 मुहर्रम के वाले से तकरीबन 4-5 जगहों पे मैं गया इसाले सवाब के लिए। तो मैंने वहाँ जाके तबलीग भी की, क्योंकि इनके मामलात कुछ और होते हैं, इनको पता नहीं होता कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, इमाम हुसैन की कुर्बानी क्या है। तो वहाँ पे मैं गया, ये बच्चे बैठे, मैंने दुआ भी कराई। और इतने बच्चे और नौजवान जिन्होंने कानों में बालियाँ पहनी हुई थी, हाथों में कड़े पहने हुए थे और गले में जंजीरें पहनी हुई थी और पाँव में जनाब कड़े पहने हुए थे। अल्लाह के फजल से, इस इदारे की बरकत की वजह से मैं कहता हूँ, और ज़िक्र हुसैन की बरकत की वजह से आज बहुत सारे नौजवानों ने मेरे सामने कड़े उतार के कहा, हाफिज़ जी, मियाँ जी, आपके सामने वादा करते हैं कि जब तक सांस में सांस है इन खराफात के करीब भी नहीं जाएंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे इदारे का फैज़ है, किबला पीर साहब की मोहब्बत है। हज़रात मोहतरम, बातें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़िक्र हुसैन मैं नारा लगवाऊँगा, ज़रा आपने मोहब्बत का इजहार करना है ज़रा मोहब्बत से, ताकि एक खराज अकीदत है। नारे हम ज़्यादा नहीं लगवाते, लेकिन आज क्योंकि ज़िक्र हुसैन है तो ज़रा ज़िक्र हुसैन, इमाम हुसैन भी खुश हो जाएं, हसन मुश्तबा भी खुश हो जाएं। मैं नारा लगवाऊँगा, नाराए हसनैन। आपने कहना है या हसन या हुसैन। नाराए हसनैन, नाराए हसनैन, नाराए हसनैन, नाराए हसनैन, नाराए हसनैन। अल्लाह का फजल है, कोई और समझे ना समझे, मैं तो करीम इमाम हुसैन को अपने दिल का चैन समझता हूँ और अपने रूह का सुरूर समझता हूँ। वो किसी ने क्या खूब बात की है जनाब मियाँ अशरफ साहब, किसी ने क्या खूब बात की कि जनाब दिलों का सुरूर, रूह का चैन, वाह हुसैन वाह हुसैन। दिलों का सुरूर, रूह का चैन, दिलों का सुरूर, रूह का चैन, दिलों का सुरूर, रूह का चैन, या हुसैन। और हुसैन, सुभान अल्लाह, कह दो ना सुभान अल्लाह। कितनी अज़मतों वाला, कितनी शानों वाला, कितनी बुलंदियों वाला है मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना शरीफ की गली से निकले मियाँ शौकत साहब, रसूल करीम मदीना तो रसूल की गली से निकल के सामने सहरा था, मैदान था, वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। आपने एक बच्चे को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। वो करीब आए, उनको गोद में उठा लिया। वो बच्चा कितना खुशकिस्मत है जो गोदे नबूवत में था, गोदे रिसालत में था। लोग तरसते हैं हिम दर्द कुत्ते नाल अदब, कि उनके दर के कुत्तों का भी हम अदब करते हैं। और वो बच्चा कितना खुश नसीब होगा जो गोदे नबूवत में था। करीम रसूल ने गोद में लिया, उसको चूमा, प्यार किया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चा हमने नहीं देखा कि आपके नसब से हो, आपके खून से हो, ये बच्चा हमने पहली दफ़ा देखा है और इसको आपने बुलाया है और गोद में उठाया है और फिर चूम रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, थोड़ी सी जसारत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इस बच्चे से इतना प्यार क्यों? मेरे करीम रसूल मुस्कराए। जब रसूल मुस्कराते थे तो मैं यूँ समझता हूँ पूरी कायनात ही मुस्कराने लग पड़ती थी। कायनात का चप्पा चप्पा मुस्करा उठता था। कहा साहबा, मेरे प्यारे साहबा, मुनीर साहब सुनना, गोंदल साहब, कहा मेरे साहबा सुनो, ये वो बच्चा है, मैंने अक्सर इसको देखा है कि जब मेरा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
مدینہ کی گلی سے گزرتا ہے نا، میں اس بچے کو دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ جہاں میرے حسین کا پاؤں لگتا ہے نا، اس جگہ کی مٹی کو یہ اٹھاتا تھا، مٹی کو اٹھا کے چوم کر آنکھوں پہ بوسہ دیا کرتا تھا۔